अक्टूबर 2018 वेरिएंट 12, ठीक है। अक्टूबर 2008 पेपर वन स्टाइल एग्जाम है, और इसमें ईयर आप लोग लिख लो अक्टूबर 2018 वेरिएंट 12, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द केस, और केस की रीडिंग थोड़ी स्लो करेंगे, पहले देखते हैं कि क्या सीन है, क्या बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है। केस हमें बहुत तरीके से पढ़ना होता है हमेशा, ठीक है। एम एंड आर मोटर्स M&R Motors has two car showrooms, ठीक है। It buys old cars and repairs them before selling them to its customers, ठीक है। पुरानी गाड़ियां खरीद के नई मतलब उसको रिपेयर करके सेल करते हैं, ठीक है। M&R is always trying to increase added value, ठीक है। गाड़ियां रिपेयर करने का बिजनेस है, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कार्स, हाँ। और M&R plans to open another showroom, ठीक है। The owner said finding the right location is important. Definitely, if you're finding a new location for a new showroom, then it's क्या ये important है कि हमारी location अच्छी हो? क्या एक showroom की location अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे proper infrastructure facilities हो, security हो, accessible हो, लोगों का आना जाना easy हो, गाड़ी customer लेके आ रहे हैं जे, है ना? तो feel that it's actually, yes, finding the right location is important. The new showroom will require a manager, and I need to find someone with the right qualities. Okay. The job will be advertised in the local newspaper as shown in figure 1. The advertisement will cost $5 for 1 week. So yeah. So basically we are currently having two showrooms. We repair old cars and we like just repair and sell them. And we are planning to open the third showroom. We are always trying to add value, and we are finding a location for this showroom, and we also need a person to manage that showroom. और इसकी एडवर्टाइजमेंट जो दी है वो क्या दिया हुआ है देखता हूँ. Job advertisement. M&R is planning to use for the new manager. Okay, what's the ad like? Car showroom manager required. ठीक है भाई, कोई नया एम्प्लॉय चाहिए. There's a vacancy available in our showroom because we are about to open a new showroom, right? अच्छा, this successful business is expanding. The job involves managing the office and selling cars. ठीक है, ऑफिस मैनेज करना है और गाड़ियां भी बेचनी है. You will be in charge of 3 workers who will repair the cars. Do you have qualities we are looking for? We offer good pay and working conditions. ठीक है भाई, पूरी उन्होंने अपनी नौकरी एडवर्टाइज की है. For more information, apply to M&R Motors. Okay, अच्छा एडवर्टाइजमेंट बना दिया हमने. What is meant by added value? What is meant, part A, what is meant by added value? Added value मैं लिखवाता हूँ, definition लिखो. Added value is the difference between the selling price added value is the difference between the selling price and the cost of bought in materials. Added value is the difference between the selling price and the cost of bought in materials. ठीक है. और वैसे एडेड वैल्यू उन स्ट्रैटेजीज को कहते हैं जो आप यूज करते हो ताकि यू एड मोर या you're able to convince your customers to pay a good price for your product. कि आप अपने रॉ मटेरियल को कैसे प्रोसेस करते हो कि कस्टमर ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा उसमें कोई नया फीचर ऐड करके, या कोई इसमें जैसे अगर गाड़ियां हैं तो मे बी कोई पावरफुल टायर्स, पावरफुल इंजन, या कोई यूनिक कलर्स. what do you do basically which convinces the customers to pay a better price for your product? Those strategies are also known as added value. और बेसिक इसका वैसे जो फॉर्मूलाइक डेफिनेशन है ये, दिस इज हाउ यू कैन राइट. ठीक है, वैसे फीचर्स वाली बात भी आप लिख सकते हो कि स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द बिजनेस टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स, इस तरह भी लिख सकते हैं. पार्ट बी, identify 2 qualities that M&R might look for in the new manager. Okay,
एक नया मैनेजर ढूंढ रहे हैं, क्या क्वालिटीज हमें मैनेजर में देखना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, मैनेजर मस्ट बी, मस्ट मैनेजर, मैनेजर के लिए रिस्क, मैनेजर मैनेज करेगा लोगों को, उसके अंडर स्टाफ होगा, तो व्हाट स्किल्स, व्हाट क्वालिटीज मस्ट हैव? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, शुड बी हार्ड वर्किंग, मैनेजर शुड बी क्रिएटिव, इनोवेटिव, सही है ना? इंडिपेंडेंट, क्वालिटी, क्वालिटी, इंडिपेंडेंट क्वालिटी तो नहीं होगी ना, क्वालिटी। मैनेजर की बात हो रही है इसलिए, हाँ ठीक है, क्योंकि मैनेजर का बेसिक रोल ये होता है कि उसके अंडर फिर कुछ लोग, जैसे अगर एक स्कूल मैनेजर है, उनके अंडर लेट्स से 5-6 एडमिन मैनेजर्स काम करते होंगे, तो लोगों को मैनेज करना, उनको मोटिवेटेड रखना, उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छे से रखना, उनको उनके टारगेट्स उनको बताते रहना, अच्छा मैनेजर बहुत सारे काम कर रहा होगा। तो फॉर दैट ही नीड्स टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ही शुड बी इनोवेटिव और ही शुड बी क्रिएटिव, he should be responsible, he should be hardworking, that's a quality, right? समझ आ गया? पार्ट सी, पार्ट सी देखो, identify and explain two methods of selection M&R could use when choosing the new manager। ठीक है, कोई नया मैनेजर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन मेथड, रिक्रूटमेंट ढूंढने की बात नहीं हो रही अब सिलेक्शन, अगर लेट्स से मैंने ये वैकेंसी पोस्ट की, एडवर्टाइजमेंट लगाया, तो अब बहुत सारे एम्प्लॉइज, बहुत सारे लोग, एम्प्लॉइज से नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ना जॉब के लिए, तो अब हम सबको तो नहीं रख लेंगे, तो नाउ वी नीड टू हैव सर्टेन सिलेक्शन क्राइटेरियाज। लेट्स से इफ समवन अप्लाइज फॉर आवर वैकेंसी, लेट्स से अब हमने ये जॉब एडवर्टाइजमेंट दिया, और अब जॉब एडवर्टाइजमेंट देने के बाद जब लोग अप्लाई करेंगे, तो अब मेरे पास लेट्स से 150 सीवीज आ गई, लेट्स से 150 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर दिस वैकेंसी। सो अब मैं सबको तो नहीं रख लूंगा ना, ऑब्वियसली वैकेंसी तो एक ही है, तो व्हाट टेक्निक्स आई कैन यूज टू सेलेक्ट बिटवीन दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड? मुझे कैसे पता चलेगा एज अ एचआर गाय कि वो जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से कौन अच्छा है, कौन सा किसको रखना है? तो मे बी मैं उनके इंटरव्यूज कर सकता हूँ, मैं उनको किसी रिटन टेस्ट के लिए भी बुला सकता हूँ, मैं उनको जो है वो प्रोबेबली कोई प्रेजेंटेशंस भी करवा सकता हूँ। नाउ आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनको कहते हैं सिलेक्शन टेक्निक्स। सिलेक्शन टेक्निक्स का मतलब होता है, मैं वो नहीं चेक कर रहा कि उनकी उनकी प्रोफाइल, इंटरव्यूज करूंगा तो बेसिकली मैं एक्सपीरियंस पूछूंगा उससे, उनकी मे बी प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें इंटरव्यू में पूछूंगा ना। सो सिलेक्शन के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हो, जैसे नंबर 1, मेथड 1, M&R can keep interviews, M&R can keep interviews with the candidates applying for the job. M&R can keep interviews with the candidates applying for the manager, applying for the manager position in new showroom। क्योंकि एप्लीकेशन ना साथ साथ केस से भी रिलेट करना है, तो इसलिए मैं न्यू शोरूम, ठीक है। इंटरव्यू से क्या फायदा होगा, वहां एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन इंटरव्यूज, कौन इंटरव्यू ले सकता है? चलो अगर बहुत ही बेसिक वो सुनना है, तो बेसिक ये लिख सकता हूँ कि इंटरव्यू में वी कैन क्वेश्चन about their experience, about their qualifications, about their profile, मतलब we can ask a lot of questions from that candidate। तो एक तो हम इंटरव्यूज ले सकते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस उसकी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उससे बातचीत करके पता चल जाएगा कि वो बंदा कैसा है, हाउ कॉन्फिडेंट दैट पर्सन इज, बेसिक उसको चेक कर लेंगे ना। और और ये भी कह सकते हो अगर आप बहुत ही ऊपर जाना है, बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल, तो ऑलरेडी इनके जो 2 शोरूम्स हैं उनके भी कोई मैनेजर्स होंगे, तो व्हाट दे कैन आल्सो मे बी
sit along the owner or whoever takes the interview. So basically जो दो बंदे मैनेजर्स हमारे ऑलरेडी हैं उन वो ही इंटरव्यू ले सकते हैं फॉर द थर्ड गाय. तो उनका पता भी वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वो ज्यादा बेहतर एनालाइज कर लेंगे कि क्या वो बंदा सूटेबल बंदा लग रहा है या नहीं लग रहा है ना. द एग्जिस्टिंग, देखो कैसे फुल हाई क्वालिटी लिखवा रहा हूँ, समझ आया आपको. द एग्जिस्टिंग टू मैनेजर्स ऑफ शोरूम्स कैन क्वेश्चन the candidate directly about their experience and skills. The existing two managers of showroom can question the candidates directly about their experience and skills, or maybe about their strengths and weaknesses. सही है. थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है वैसे, लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका बहुत बेसिक वर्जन भी लिखा जा सकता है. अगर मैं कहूँ कि भाई दिस कंपनी कैन इंटरव्यू द कैंडिडेट्स, फिर एक्सप्लेनेशन, बेसिक भी हो सकता है. लेकिन जितना मैं केस से रिलेट रखूंगा, देखो कितना मैं शोरूम के अंदर चला गया हूँ बेसिकली ना, मैं कितना फील आ रहा है कि यार वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस. ये फील अगर आपके आंसर के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब कि आपका बहुत हाई क्वालिटी आंसर है. ठीक है. मेथड टू, M&R can conduct a written test for the candidates applying for jobs. M&R can conduct a written test for the candidates applying for the job. सही है. Written test से क्या पता चलेगा? Written test, if you are having a written test with our candidates, then their technical knowledge can be assessed maybe, है ना. The technical knowledge, क्योंकि ये कार शोरूम मैनेज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी फील्ड के कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं. सही है. तो बेसिक टेक्निकल नॉलेज अगर आपको चेक करनी है, नॉलेज बेस जिसको कहते हैं, द टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि देखो ना जो रिटन टेस्ट होगा उससे हम उससे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसका जो टेक्निकल लेवल है कि वो उस फील्ड को कितना जानता है, गाड़ियों को कितना समझता है, कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो रिटन टेस्ट उसकी टेक्निकल नॉलेज चेक हो जाएगी. और फिर जब इंटरव्यू पे आएगा तो उसका हम बात करने का तरीका, उसके मेच्योरिटी लेवल, उसको हम फिर उस तरह से देख सकते हैं बात करके. द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स कैन बी the technical knowledge of the candidates can be assessed using the written tests. Using the written tests. So yeah. Okay, part D. Identify and explain two factors that M&R might consider when deciding on a location for the new showroom. Identify and explain two factors that M&R might consider when deciding on a location for a new showroom. अच्छा, अभी जो थर्ड शोरूम अपना लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए जो अब लोकेशन डिसाइड करें, so what are the factors that they should consider? Tell me the factors that शोरूम है, अब शोरूम तो, और शोरूम का बिजनेस सोच के बात करना, क्योंकि अब जो भी पॉइंट आप कह रहे हो वैसे तो जनरल भी लिख सकते हैं हम. अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज का पॉइंट बड़ा इजी लिख सकते हैं कि वहां पे क्योंकि हमें वर्कर्स चाहिए होंगे, 3 वर्कर्स की एग्जांपल उसने दी थी, जितना केस से रेलेवेंट. वैसे जनरल भी लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सोच सोच के लिखोगे ना तो गाड़ियों के लिए गुड, गाड़ी जितना स्पेसिफिक, बड़ी जगह चाहिए होगी, क्योंकि गाड़ियां काफी ज्यादा स्पेशियस इन्वेंट्री है आपकी बेसिकली, तो वो तो बहुत बड़ी स्पेस है, तो उसका रेंट वगैरह भी देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा भी रेंट ना हो, क्योंकि डेफिनेटली बहुत रेंट, बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी. फाइनेंशियल उनको देखना पड़ेगा ना. रॉ मटेरियल का एक्सेस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि गाड़ियों का हम रिपेयर कर रहे होंगे, तो अब उस रिपेयर के लिए कितने सारे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, कितने सारे तरह तरह के पार्ट्स चाहिए होंगे,
अगर आप सप्लायर से बहुत दूर हो या अगर आप उस एरिया में आपको सप्लाईज नहीं मिलेंगे तो आप गाड़ी रिपेयर कैसे करोगे? या तो आपको फिर दूर से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा और फिर वो महंग, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी कॉस्ट आपको, है ना। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ताकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड एक्सेसिबिलिटी, एम्प्लॉयज, यस यस एम्प्लॉयज देखेंगे क्योंकि मैनेजर भी चाहिए, 3 वर्कर्स भी चाहिए। वैसे जनरल भी लिख सकता हूँ कि यार एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं और एम्प्लॉयज आपका शोरूम चलाएंगे। रादर मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, देखना आज बहुत ज्यादा कि अब इनको एक नया मैनेजर भी चाहिए फॉर द न्यू शोरूम एंड देन दैट मैनेजर, इन्होंने बताया है that manager would be in charge of 3 workers. So now we will need to have 3 more people in the showroom, right? And for that we will need people. और क्या हमारे पास इतना स्किल्ड एम्प्लॉय है कि मतलब या वहाँ उस एरिया में मिलना चाहिए ना जो रिपेयर जानता हो गाड़ियों का रिपेयर, वरना तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। समझ आया? यानी कि जितना मैं स्पेसिफिक बात करूंगा उतना मेरा आंसर ऊपर जाता है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। अच्छा, फैक्टर वन, M&R should consider the availability of employees on the new location. On the new location. अच्छा, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में हमें 2 मार्क्स दिए हुए हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आई हैव 4 लाइन्स फॉर दिस, राइट। जब एक्सप्लेनेशन 4 लाइन्स की है तो इसका मतलब कि ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है ना, इससे मुझे निकालने हैं 2 मार्क्स, ठीक है। एंड जब 2 मार्क की एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आए तो आपके माइंड में 2 बातें क्लियरली चलनी चाहिए हैं कि नंबर वन, what are you trying to say basically? What do you mean that they will need, मतलब availability of employee is important? Why? Like क्यों चाहिए होगा एम्प्लॉय? और फिर क्यों क्यों लिखी ये बात, क्यों ये फैक्टर जो है कंसिडर किया जाता है। जैसे पहले आप बताओगे कि यार एम्प्लॉयज क्यों चाहिए होंगे, क्योंकि शोरूम मैनेज करने के लिए दे विल नीड अ मैनेजर एंड द मैनेजर विल बी इन चार्ज ऑफ 3 वर्कर्स जो गाड़ी रिपेयर कर रहे होंगे। तो अब वो हमें अप्रोप्रिएट स्किल इसलिए चाहिए होगा। पहली बात मैं बताऊं कि एम्प्लॉय क्यों चाहिए होगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि फिर मतलब अगर नहीं सोचा इस बारे में तो प्रॉब्लम क्या है, लाइक वाई इज इट अ प्रॉब्लम और वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दिस फैक्टर। क्योंकि अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो फिर काम की क्वालिटी सफर करेगी। समझ आ रहा है? यस एग्जैक्टली। आप यूं भी याद रख सकते हो कि मतलब अगर 4 लाइन्स है ना तो इसका मतलब 2 मार्क्स, यानी 0.5 पर लाइन, यूं समझ लो। जो आपको खाली फ्रेम बना रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली 0.5 लिखने पे मिलेगा, लेकिन हाउ टू प्लान योर आंसर, दैट्स अ टेक्निक टू प्लान। ठीक है, देखो मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि लिखते कैसे हैं। लिखने कैसे, ये ज्यादा जरूरी है ना कि ऐसे ही भर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। एज M&R will need a skilled manager for the showroom along with three repair workers, your repair staff. As M&R will need a skilled manager for the showroom along with 3 repair staff, so they must ensure that supply of labor, that the supply of labor is good in that area. So this new showroom can operate and offer good quality service to customers.
So this new showroom can operate and offer good quality service to the customers. Achha, factor 2. M&R should consider M&R should consider the availability of supplies in the area. Availability of supplies in the area. अब पहले मुझे बताना है कि सप्लाईज क्यों चाहिए होंगी, फिर मुझे बताना है कि सप्लाईज का होना इंपॉर्टेंट क्यों है. सप्लाईज क्यों चाहिए होंगी? एज M&R will be repairing old cars, as M&R will be repairing old cars, so they will need variety of components and spare parts. So they will need variety of components and spare parts, and they should be nearby to minimize transportation costs. So they should be nearby to minimize transportation costs and to ensure undisturbed production. देख रहे हो किस तरह से पहले मैं बताता हूं कि वो कहना क्या चाह रहा हूं और फिर ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है. कहना क्या चाह रहा हूं और फिर ये बात क्यों कंसिडर कर जी. यानी कि फर्स्ट यू हैव टू प्रूव. अगर आप कह रहे हो कि नया एम्प्लॉय चाहिए होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय सोचना है, तो पहले बताओ ना कि क्यों चाहिए होगा और फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एम्प्लॉयज अवेलेबल हों. अगर आप कह रहे हो कि सप्लायर्स करीब होने चाहिए, तो क्यों सप्लाईज चाहिए होंगे और फिर ये बात क्यों कंसिडर करनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट एंड देन व्हाई आर यू राइटिंग दिस पॉइंट इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाई. सही है. तो दैट्स हाउ यू राइट अ क्वेश्चन. और इसमें अगर आप एप्लीकेशन देखो तो कितना मैंने न्यू लोकेशन तो खैर, और मैनेजर चाहिए होगा, 3 रिपेयर स्टाफ, न्यू शोरूम कैन ऑफर गुड. सही है. फिर रिपेयरिंग ओल्ड कार्स, स्पेयर पार्ट्स. समझ आ गया मेरे ख्याल से ना. यानी कि कितना मैं केस से रेलेवेंट रहता हूँ कि ऐसा लगना चाहिए मतलब वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बिजनेस दैट वी हैव रेड इन द केस. सो दैट्स द बेस्ट एंड डेफिनेटली दैट कम्स विद प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर उससे खुद ब खुद इसमें आप अच्छे हो जाते हो. सही है. पार्ट ई पार्ट देखते हैं. ई पार्ट. Do you think a newspaper is the best way for M&R to advertise the new job? Justify your answer. Do you think newspaper is the best way for M&R to advertise the new job? Justify your answer. Okay. So now we have 6 marker. So if we talk about this 6 mark question, अच्छा, अब इसमें मुझे 6 मार्क अगर चाहिए हैं तो I will have to talk about newspapers as well, obviously. अब दोनों साइड्स बतानी है हमें कि न्यूज़पेपर का क्या सीन है. पहले हम न्यूज़पेपर पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर क्यों अच्छा है या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और कौन सा मीडिया यूज किया जा सकता है टू एडवर्टाइज जॉब्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स. सो टीवी ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, लेकिन मैनेजर चाहिए है और ये वैकेंसी एडवर्टाइज करनी है. तो आई थिंक कार मैगजीन्स वुड हैव बीन अ वेरी गुड आइडिया. कार मैगजीन्स में अगर करते तो बहुत स्पेसिफिकली आई थिंक आपको जॉब एजेंसीज गुड. वी कैन आल्सो हैव अ रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर दैट, जो हमें स्पेशलिस्ट बंदा दे दे. लेकिन फिर वो कमीशन रखते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी होते हैं. और ऑनलाइन, व्हाई नॉट ऑनलाइन यार. Maybe they can use a lot of
different professional websites where they can advertise, because most of the people are now, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी ला सकते हो ना, आई वुड सजेस्ट टेक्नोलॉजी को आप इंपॉर्टेंस दिया करो अपने पेपर में. वैसे तो जॉब एजेंसीज भी लिख सकते हैं, मैगजीन्स भी लिख सकते हैं, सब ओके की सीन है. लेकिन आई थिंक जब ऑनलाइन इतना मीडिया बढ़ गया है, इतना सोशल मीडिया का यूज़, प्रोफेशनल जो नेटवर्क्स हैं उस पर आप, मतलब अगर आप कह जहाँ पे ला सको बीच में, तो यू जस्ट ब्रिंग इन. जैसे मार्केटिंग का भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि प्रमोशन के लिए टीवी बेस्ट है, तो उसमें भी हम ऑनलाइन के ऊपर बहुत फोकस करें. जितना ऑनलाइन के ऊपर आप बातें शुरू करोगे ना, तो एग्जामिनर वुड बी लाइक गुड यार, दिस गाय नोज. ठीक है. सो खैर न्यूज़पेपर पे अच्छा सीन ये है कि बहुत सस्ता है. और लेकिन न्यूज़पेपर का प्रॉब्लम ये है कि शायद क्या होगा, न्यूज़पेपर का प्रॉब्लम ये है कि शायद उसने वो कभी कोई देखे ना देखे, इग्नोर हो जाए, उस पर कोई लोकल एरिया में सिर्फ देखा जाएगा. बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है. और ऑनलाइन का फायदा ये है कि ऑडियंस आपके पास फिर बहुत बड़ी हो जाती है, आप काफी सारे लोगों को वो ऐड दिखा सकते हैं, विच हेल्प्स यू टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द जॉब. और लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन के एड्स डिजाइन करना, उसको पोस्ट करना, इट्स अ प्रॉपर स्किल. तो उसके लिए आपको फिर प्रॉपर स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है. इट्स नॉट एन ईजी जॉब थिंग टू डू. न्यूज़पेपर में तो आप सिर्फ पैसे देते हो, ऐड बताते हो जाता है. ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को पोस्ट करना, उसके लिए कोई फिर वेबसाइट का होना या पोर्टल का होना, लोग अप्लाई करेंगे तो ठीक है इसके लिए, लेकिन दैट्स अ टेक्निकल वर्क, दैट्स नॉट एन ईजी जॉब. तो उसके लिए आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है जो ये हैंडल करे. तो क्या ये स्टाफ अभी आपके पास है, या स्टाफ ऐसा आपके पास नहीं है, तो अब ये भी एक क्वेश्चन होगा. सही है. तो लेकिन आई थिंक और जब भी हम अपना ओपिनियन देंगे, अब चाहे हम न्यूज़पेपर के फेवर में अपना ओपिनियन दें या न्यूज़पेपर के अगेंस्ट हम अपना ओपिनियन दें, बट जस्टिफिकेशन जो है ना वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए. तो आई थिंक चलो बल्कि करता हूँ. सही है. मैं लिखवा रहा हूँ, इफ MNR, नहीं इफ नहीं, advertising is newspaper, advertisement in newspapers for vacancy, advertisements in newspapers for vacancies, a vacancy of the manager is a very less costly method. It's a very less costly method. It just costs $5 a week. लिखा हुआ था ना ऊपर, it costs $5 a week for 1 week, which will which will be quite affordable, which will be quite affordable for MNR, but the advertisement may be completely ignored by the potential candidates. यानी हो सकता है कि जो एक बहुत पोटेंशियल बंदा था उसने देखा ही नहीं ऐड, या अखबार नहीं देखा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो वाला पेज नहीं देखा, वो वाली साइट नहीं देखी. प्रैक्टिकल होता है ना. MNR can also use online media to advertise. MNR can also use online media to advertise this vacancy. Also use online media to advertise this vacancy, such as social media. Facebook लिख सकते हो एग्जाम में. Such as social media or professional networks. ये भी आप पहली दफा लिख रहे हो, लेकिन ये अगर लिख लोगे ना तो एक दफा आप याद कर लो
इस तरह की जो एप्लीकेशंस है, लिंक्डइन है जैसे, अब ये वैसे ज्यादा ब्रांड नेम्स हम नहीं लिखते, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वो साइड है, या ये लिंक्डइन और ये सारी खाली वो नाम है जो आप एक्चुअली लिख सकते हो, बिकॉज ये है ही सोशल मीडिया इस पर्पस के लिए ना। तो इनको रेफर कर, वैसे ज्यादा ब्रांड नेम्स कभी नहीं लिखते, लेकिन अब आप ये लिंक्डइन और ये सब बातें कर सकते हो, such as social media, Facebook, or professional networks, which can be technical to manage, but can attract large number of suitable candidates. Large number of suitable candidates. Overall, I think अब पहले सवाल तो जवाब देना है ना कि न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे. Overall, I think newspaper could be effective, but है तो अच्छा, but cannot be considered as the best. But cannot be considered as the best. I think, yeah, in my opinion, investing on online advertisements, I think investing on online advertisements in today's time is much more effective, and will be helpful for MNR in the long term as well. And will be helpful for MNR, यानी कि अभी वैसे ही और भी लिख सकते थे कि ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं, थर्ड शोरूम लॉन्च हो रहा है, कल को फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा. तो इसके लिए अब आप एक दफा इन्वेस्टमेंट या इस तरह का सेटअप कर दो जहां पे आप बार बार फिर वैकेंसीज पोस्ट कर सको ना. अब बार बार अखबार और ये सब से तो, क्योंकि एज यू ग्रो, एज यू एक्सपैंड, देन यू नीड टू हैव दैट place where you can advertise vacancies, because a lot of people will come and go. कितनी दफा बार बार इस तरह अखबार या करते रहो, साथ साथ अखबार भी कर लो, इतना महंगा नहीं है, लेकिन online thing would be considered best according to me in these days. सही है, बहुत ही हाई क्वालिटी आंसर लिखा है इस दफा हमने, और वो इसीलिए लिख रहे हैं कि मैं आपको समझाऊं कि दिस इज हाउ यू थिंक. एज इट इज सेम आंसर आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं, आप एज इट इज सेम आंसर लिखो, लेकिन सोचने का, लिखने का स्टाइल, कितना स्पेसिफिक आंसर है, ये सब आप बातें इसमें जो मेन सीखने का ऑब्जेक्टिव था आज हमारा. ठीक है, सो दैट्स इट. एनी क्वेश्चंस गाइस?